Good morning, everyone. How are you all? I am fine. How about you? I'm also fine, beta. Beta, in last couple of live session for English subject, already we have studied that ki what are prepositional phrase. What are prepositional phrase? And also we have Yes. answered few questions in from book A. Couple of questions are remaining in book C that we need to discuss today. But before moving ahead, first of all, I would like to know that ki whether anybody have attempt to answer those questions in book C. क्या आप लोगों में से किसी ने उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया? Yes, sir. Okay. So how many have? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let me check what was actually it was a grammar station book B, the last question. Okay. Let me open, not book C. Translation after listening, right? Yes, this was the grammar station. So already we have discussed the concept. So just moving ahead directly on the questions part. अभी हमें फिर से आज क्वेश्चंस के आंसर देने के पहले एक बार मैं फिर से 3-4 चीजें रिमाइंड कर दे रहा हूँ. व्हाट आर प्रीपोजिशनल फ्रेजेस? सभी को आई होप कि ध्यान भी होगा. कैन एनीबॉडी स्पीक? आप लोग बोल ले तो ज्यादा बेटर है. महक, व्हाट आर प्रीपोजिशनल फ्रेज? Sir, a phrase that start with preposition is called prepositional phrases. Preposition that is starting with the preposition word is called the prepositional phrases. One more thing, जो preposition phrases होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, किस तरह फंक्शन करेंगे, how they would be function. दीपिका वर्मा, जो prepositional phrases होंगे उस तरह किस तरह से फंक्शन करेंगे, एज ए वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, या किस तरह से फंक्शन करेंगे, या preposition की तरह करेंगे, कैसे फंक्शन करेंगे. Deepika is not connected well. Ans Pandey, start your video. Everybody, please. Nobody have to stop their video. What you all are hiding? What you all are hiding by stopping your video? That means you all, I think you are not in the front of camera. I have to remove like this kind of students. Aviral, आप बताइए बेटा, how the prepositional phrases function? कौन बता सकता है? Who can speak? केवल महक ही. महक बताइए बेटा. A prepositional function like adjective and adverb. Like an adjective और एडवर्ब, या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे या तो एडवर्ब की तरह. एंड नहीं, एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह नहीं काम करेंगे. या तो एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे या तो एडवर्ब की तरह करेंगे. 2 पॉइंट ध्यान रहेगा ना. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये 100% है कि वो प्रीपोजिशन वर्ड से शुरू होंगे या एडवर्ब या एडजेक्टिव की तरह ही करेंगे, काम करेंगे. वन मोर थिंग, जो आपका ऑब्जेक्ट के साथ आते हैं ये फ्रेजेस क्या होते हैं एक तरीके से. लेट्स से कि देयर इज अ सेंटेंस, इसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ जो आपका प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट आता है, दैट इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. ये पहचानने का सबसे आसान तरीका है. तो लेट अस फाइंड आउट, let us identify the prepositional phrases in these sentences too. In the first question, there are 5 sentences. We have to identify the prepositional phrases. अभी महक ने बताया भी है, prepositional phrases preposition word से शुरू होते हैं और ये ध्यान देना है वो ऑब्जेक्ट होंगे, वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होंगे और कहीं ना कहीं वो एडवर्ब की तरह या एडजेक्टिव की तरह काम करेंगे. यही पहचान है. ठीक है, कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने की, आइडेंटिफाई करने की. द फर्स्ट सेंटेंस, प्रिया रीड द फर्स्ट सेंटेंस. This incident has taught टॉट. no sir taught me a valuable valuable lesson about
honesty, ऑनेस्टी, हाँ नहीं होगा, अ होगा, H is the silent letter. Honesty. This incident has taught me a valuable lesson about honesty. This incident, इस घटना ने, has taught me, इस घटना ने मुझे पढ़ा दिया है या सिखाया है क्या? A valuable lesson, एक बहुत ही valuable lesson about honesty, honesty के बारे में, honesty के बारे में बहुत ही valuable पाठ, बहुत ही valuable सीख सिखाया है इस इंसिडेंट ने। इसमें बेटा which one is the, where is the prepositional phrases? Deepika Verma. It's a valuable lesson about history, honesty. बेटा valuable आपका क्या preposition word है? Prepositional phrases ये साफ साफ बोला गया, preposition word से ही शुरू होंगे, तो valuable आप पहले कैसे बोल सकती हैं? आप अभी यानी ध्यान नहीं दे रही हैं। Prepositional phrases वही होंगे जो preposition word से शुरू होंगे, तो valuable is not a preposition word. अविरल आप बताइए, अविरल नई लाइन पे है। This. अरुण गुप्ता Sir, दिस आपका प्रीपोजिशन वर्ड है बेटा। अभी आप जब प्रीपोजिशन वर्ड ही नहीं पहचानेंगे तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस तो बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। क्या हो सकता है, कौन बता सकता है? प्रीपोजिशन वर्ड ही नहीं पहचान पा रहे हैं, इसमें प्रीपोजिशन वर्ड है भी या नहीं? क्यों महक आप ही बताइए। सर इसमें प्रीपोजिशन वर्ड है ही नहीं। है ही नहीं, क्यों महक? क्या इसमें प्रीपोजिशन वर्ड है ही नहीं? सर अबाउट ऑनेस्टी, ये अबाउट तो आपका प्रीपोजिशन वर्ड ही है बेटा। अबाउट इज प्रीपोजिशन वर्ड, अगर आप प्रीपोजिशन वर्ड ही नहीं पहचानेंगे तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस तो बिल्कुल भी नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अबाउट ऑनेस्टी इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, नाउ कम टू द सेकंड सेंटेंस। अरुण गुप्ता, रीड द सेकंड सेंटेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग द रिचुअल्स द devotees walk around the ideal 7 times. After completing the rituals, the devotees walk around the ideal 7 times. Now, first of all, you have to find out that where is the preposition word. Thereafter, you have Sir, to after completing the rituals, the devotees walks around the ideal 7 times. बेटा that means कि after तो आपका मान लीजिए preposition word है, आप बता रहे हैं, but which one is the prepositional phrases? prepositional phrases कौन से हैं? preposition से जो शुरू हो वही prepositional phrases हैं। क्या है? yes sir. कौन से हैं? सिद्धार्थ आप एक बार कोशिश करिए। Sir, completely फर्स्ट सबसे पहले बात, आपने प्रीपोजिशन वर्ड यूज ही नहीं किया, कंप्लीटली तो गलती हो गया। प्रीपोजिशन वर्ड सबसे पहले बोलो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस के लिए। Sir, after completely कंप्लीटली इसको पढ़ा, इसको जरा पढ़िए, क्या लिखा है ये? व्हाट इज दिस? सर कंप्लीटिंग तो कंप्लीटली क्यों बोल रहे हो? अंश पांडे, मुझे आपको बाहर करना पड़ेगा अगर आपका वीडियो नहीं ऑन हुआ। अंश पांडे, yes sir, I have to remove you if you are not going to start your video. I do not like this kind of behavior. Why you are not starting your video? What you are hiding? आप क्या छिपा रहे हैं? After completing the rituals, the devotees walks around the ideal 7 times. सिद्धात्री ने बताया आफ्टर कंप्लीटिंग द रिचुअल्स, दिस इज द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। क्या इसमें और भी कोई है या यही सिर्फ है, या ये नहीं है? मैं क्या बताइए? around the ideal. Around the ideal is also the prepositional phrases. That is good. Around the ideal, around is also the prepositional word. That means around the ideal is the prepositional phrases. बेटा after आपका preposition word है। The question is this कि whether around is a preposition word or not. पहले आपको तो ये जानना पड़ेगा ना, क्यों?
बेटा मैंने कुछ पूछा आपसे, क्या अराउंड आपका प्रीपोजिशनल वर्ड है या नहीं? कौन कौन इसको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस मानता है? Sir, around. अराउंड Yes, sir, sir. नहीं, क्यों महक? प्रीपोजिशन वर्ड है या कंजक्शन है या क्या है? This is a conjunction word, not preposition. Yes, sir, sir. This is a conjunction word, not preposition. Preposition word वो होते हैं जो आप कहीं ना कहीं पोजीशन शो करते हैं, उसके इसके चारों तरफ या उसके ऊपर या उसके अंदर. तो these like these things are the preposition word. समझ में आया? Around the ideal. Yes. Around the ideal 7 times is the prepositional phrases in the second sentence. Now come to the third one. Ansh Pandey, read the third one. The people run for state. पहली बात तो जो आप यही नहीं पढ़ पाए, आर्यन क्या हो गया? रन. Ran. जो रैन बोलना चाहिए. The people ran for, what is this? क्या है सिद्धार्थी, जरा बताइए अंश को क्या लिखा है ये? Silthar. हाँ शिखर. Sir, Silthar. शिलथर, वेरी गुड. थर TH से था बोल रहे हैं. प्रिया जरा आप बताइए क्या लिखा है? शिलथर ये भी बोल रहे. दीपिका वर्मा आपकी बारी अब. What is this? अगर आप नहीं बोलोगे तो मैं जानूंगा तुम्हें आता ही नहीं. हाँ बेटा फिर से बोलिए दीपिका. What is this? आपके फोन से कुछ और भी चलाया जा रहा है. दीपिका नॉट कनेक्टेड वेल. महक आप ही बताइए लास्ट में. Sir, shelter. शेल्टर मीन्स क्या होता है महक? शेल्टर मीन्स क्या होता है? आश्रय. क्लास सेकेंड या थर्ड में ईवीएस के सब्जेक्ट में पढ़ाया गया होगा. प्लांट्स गिव्स अस शेल्टर. प्लांट्स हेल्प अस फॉर द फूड, फॉर द शेल्टर. ये हमें आश्रय भी देते हैं. बहुत सारे एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं. तो शेल्टर मीन्स होता है आश्रय. चलिए ठीक है. द पीपल रैन फॉर शेल्टर एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग. जैसे ही बारिश शुरू हुई तो जो पीपल रैन फॉर द शेल्टर, लोगों ने क्या किया? आश्रय के लिए दौड़े. तो फिलहाल आपको यहाँ पे हिंदी नहीं समझने की जरूरत है. यू ऑल नीड टू फाइंड आउट द प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. द पीपल रैन फॉर शेल्टर एज सुन एज इट स्टार्टेड रेनिंग. अब नाउ व्हिच वन इज द prepositional phrases in this sentence? सिद्धार्थी, प्रिया आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है? As soon as it started raining. बेटा soon आपका क्या है? preposition word है. आपको पहले preposition, पहले आपका जो बेसिक्स है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए. आपको अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नहीं क्लियर है. सून आपका प्रीपोजिशन वर्ड नहीं है. अंश आप बताइए. अंश पांडे हंस रहे हैं, उनको नहीं बताना बेटा. Yes, मैं sir. बताओ, मुझे बहुत ज्यादा समय इस पे दूंगा तो मैं यही पढ़ाता रह जाऊंगा चौथे दिन. हाँ बेटा मैं बताइए. For shelter. The people ran for shelter. लोग दौड़े. कहीं ना बोला गया प्रीपोजिशन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट. ये प्रीपोजिशन वर्ड है फॉर वर्ड फॉर शेल्टर. द पीपल रैन फॉर शेल्टर एज सून एज इट स्टार्टेड रेनिंग. यस इट्स करेक्ट. नाउ द कम टू द फोर्थ वन. द ट्रेल दैट winds up the hills leads to a quaint granary near the edge of the cliff. अब इसमें से पहचानिए which one is the prepositional phrases.
बताइए बेटा, महक जल्दी से बताइए, कोई भी बताइए, कोई भी बताइए, which one is the prepositional phrase? Up the hill leads. Up the hills, only up the hills. Okay, now come to this. The last one, everyone except Prachi voted for my proposal. For my For my proposal. proposal. For my proposal is the prepositional phrases. Now come to the next one. दूसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है. This kind of question people face during their competitive examinations. यहाँ पे आपको prepositional phrases से कोई लेना देना नहीं है. Just you have to unscramble these words to form a meaningful sentence. एक meaningful sentence बनाने के लिए आपको unscramble करना है. A very good question. Very good type of question, because this kind of questions people face in most of the examination, most of the competitive examination. चाहे वो टेट हो, चाहे वो बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी के एग्जामिनेशन हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते ही आते हैं. तो सबसे पहले इसमें क्या करना है आपको, कुछ वर्ड्स इधर उधर कर दिए गए हैं, ये ऑब्लिक करके, स्वाति इधर है, ऑब्लिक, नियर, वेटेड, फॉर, कॉलेज, इन सबको आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस में बनाना है. अब बनाते समय आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पता है, सबसे पहले आपको देखना है कि इन दिस सेंटेंस देयर इज नो क्वेश्चन मार्क, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है. दैट मींस कि दिस सेंटेंस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव. लेकिन जब आप देखते नॉट भी नहीं है या डज नॉट भी नहीं है, दैट मींस दिस सेंटेंस विल बी इन अफर्मेटिव, पॉजिटिव होगा. ठीक है. उसके बाद यू हैव टू मेक अ सेंटेंस. जब आपने ये क्लियर कर लिया कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए. इसी चीज को यहाँ पे आपको ध्यान में रखते हुए इसको रीअरेंज करना है. जल्दी से कोशिश करिए, कोई भी जल्दी से कोशिश करके बताइए व्हाट इज द आंसर. यस महक बताइए. Swati waited for the bus near a college. वेरी गुड, ये भी बिल्कुल सही है. आपने जो बोला दैट इज 95% करेक्ट. 5% क्या है, देखो बेटा, जो आपने बोला 95 क्या, वो 100% भी सही है. एक कॉलेज, स्वाति वेटेड, स्वाति ने वेट किया फॉर द स्कूल बस, एक स्कूल बस के लिए, नियर अ कॉलेज, एक कॉलेज के पास में, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, स्वाति वेटेड फॉर अ बस, फॉर अ बस, स्वाति एक बस के लिए वेट की, नियर द कॉलेज, कॉलेज के पास में, तो इट वुड बी ऑल्सो द करेक्ट. ओके, नाउ कम टू द सेकेंड वन. सेकेंड सेंटेंस को आप जरा एक बार अनस्क्रैम्बल करें. व्हाट इज द करेक्ट आंसर, एक बार कोशिश करके बताइए. क्या होगा, मैं आपको इतना हिंट दे रहा हूं, एज सून एज से शुरू होगा. एज सून एज, as soon as क्या होगा, As soon as the children. as soon as the bell rang, a comma, as soon as the bell rang, comma, जैसे ही घंटी बजी, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद चिल्ड्रन क्या करेंगे, यहाँ पे रश यानी हड़बड़ी में, यानी जल्दी में, और क्या हो सकता है, देयर क्लासेस, यानी वो अपने क्लास से बाहर हो सकते हैं, क्या कर सकते हैं. देखिए क्या होगा, आप लोग ट्राई करें. हाँ यस महक, वेरी गुड, बताइए, कम से कम आप कोशिश कर रही हैं, बाकी लोग बैठे हैं. As soon as the bell rang, the children rushed their classes. Rushed out from their classes. Rushed Yes, out of sir. their classes बेटा, rushed out of their classes. वो अपने क्लास से जल्दी से हड़बड़ी में भागे. ठीक है, भीड़ में. वेरी गुड, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग वेरी गुड. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. बेटा हु इज लेफ्ट हियर, दीपिका, अरुण वर्मा, प्रिया, ऑल्सो यू शुड ट्राई. कम टू द थर्ड वन. थर्ड थोड़ा सा कोशिश करना पड़ेगा. दीपिका एक बार आप भी कोशिश करिए. थोड़ा सा हिंट मैं दे रहा हूं. द बॉयज हैड नो क्वाल्म्स अबाउट रिट्राइविंग देयर क्रिकेट. बस इतना मैंने बता दिया. द बॉयज हैड नो क्वाल्म्स अबाउट रिट्राइविंग देयर क्रिकेट बॉल फ्रॉम द, क्या होगा दीपिका,
आपने ध्यान भी दिया या नहीं? फ्रॉम द ट्रेन, वेरी गुड, Drain. फ्रॉम द ट्रेन. Okay, now move ahead. The fourth one is board the bridge. Small rackety is a anchor to the mango beneath tree. और इसको एक बार अनस्क्रैम्बल करिए. ये मैंगो beneath tree तो नहीं, मैंगो ट्री तो साथ में आना चाहिए. आई होप स्मॉल मैंगो ट्री क्या होगा, जरा कोशिश करिए. इसका सब्जेक्ट की जहां पे क्या आएगा, सब्जेक्ट की जहां पे क्या आएगा, कहां से शुरू हो सकता है? एंकर्ड नहीं, एंकर्ड नहीं होगा, अब बोट हो सकता है. एन एंकर्ड होता, एन एंकर्ड होता ना अगर, तो एंकर्ड तो नहीं होगा. अ बोट इज एंकर्ड. हाँ, एंकर्ड इज अ वर्ब, एंकर्ड इज अ वर्ब. अ बोट is anchored to a small, कहाँ गया? A boat is anchored, ये बेटा पैसिव वॉइस में है. A boat is anchored to a small mango tree beneath the rackety bridge. चलो हाँ, it may be the correct. A boat is anchored to a small mango tree beneath the rackety bridge. Okay, थोड़ा सा टफ है थर्ड फोर्थ आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट वर्ड्स भी थे. बट इट वे क्या करेक्ट होगा बेटा इसमें, क्या मैंने बताया? अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो ये तो बता सकते हैं. अभी अभी मैंने क्या बताया फोर्थ का आंसर? The boat हाँ बताइए. द बोट is anchored द बोट नहीं, आ बोट इज एंकर्ड to a small mango tree beneath the rackety bridge. Okay, now come to the last one. लास्ट वन तो बहुत इजी है बेटा, आपको इसको तो करना चाहिए. ये आपका इसमें वर्ब कौन सा है? सबसे पहले फ्रॉम वर्ब है, कैन वर्ब है, रोजेस है, दिस है, दा है, विंडो है, स्मेल है, यू है, क्या the है? window. कैन आपका हेल्पिंग वर्ब है एक तरीके से. अब यू कैन स्मेल इसको कर सकते हैं ना, यू कैन स्मेल क्या हो सकता है? यही होगा या कुछ और भी शुरू हो सकता है? कोशिश करिए इसको एक बार आप लोग. Sir, you can smell अब क्या from स्मेल कर सकते हैं the window. बेटा? लेकिन रोजेज वगैरह भी तो लिखना है, कोई वर्ड आपका छूटना नहीं चाहिए. फ्रॉम द विंडो Sir, आपने you तो सही can बोला. फ्रॉम द smell विंडो ठीक है. roses. हाँ बेटा महक बताइए. This from the window. You can smell this rose from. बेटा दिस नहीं है. अच्छा, यू कैन स्मेल दिस रोजेज नहीं, द यू कैन स्मेल. देखो बेटा दिस के साथ रोजेस नहीं होगा. यू कैन स्मेल द रोजेस फ्रॉम दिस विंडो. फ्रॉम दिस विंडो वुड बी बेटर. ओके ठीक है. यू कैन स्मेल द रोजेस फ्रॉम दिस विंडो. बेटा रोजेस जब आपका प्लूरल हो गया तो उसके साथ दा मतलब दिस नहीं, मतलब दिस तो नहीं लगा सकते ना, दीस करेंगे आप. ये सारे रोजेस, इस रोजेस को ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना. तो यू नीड टू कीप रिमेंबर द ग्रामेटिकल सिचुएशन. ग्रामर के जो सिचुएशन ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑल्सो यू नीड टू कीप इन योर माइंड while answering this kind of questions. अच्छा रहा ये क्वेश्चन. इसी तरीके से इस बार के एग्जामिनेशन में मैं भी ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूँ. ये थोड़ा बहुत बड़े हो गए थे सेकंड थर्ड, ऐसे नहीं, बट छोटे छोटे से शुरू करूंगा. बट यू विल बी फेसिंग दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चंस. ओके, जिसमें आपका सिंगुलर, प्लूरल, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारी चीजों का ध्यान रखा जाएगा और उस पर आप वर्क भी कर सकेंगे और वो आपकी आदत में शुमार भी होगा. अच्छा रहेगा वो. नाउ द लास्ट वन, द थर्ड क्वेश्चन इज, मैंने सोचा था कि आज मैं कुछ और दूसरा सेक्शन भी शुरू करूंगा, बट 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करता रह गया. नाउ द थर्ड वन, रीराइट ईच सेंटेंस ट्वाइस. आपको क्या करना है इसमें? रीराइट ईच सेंटेंस ट्वाइस. इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ प्रिया, आप बताइए.
सर ये जो सेंटेंस लिखा गया इसको फिर दोबारा से लिखना है। ट्वाइस, ट्वाइस मतलब क्या हुआ? डबल जिसको बोलते हो ना, एक बार, दो बार लिखना है। रीराइट, आपने बिल्कुल सही कहा, दोबारा लिखना है। रीराइट ईच सेंटेंसेस, ये प्रत्येक सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है, ट्वाइस, दो बार लिखना है। दो बार क्यों लिखना है? इन द फर्स्ट सेंटेंस, पहले सेंटेंस में यू हैव टू ऐड अ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऐड करना है एज एन एडजेक्टिव। आपको ऐसा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऐड करना है इस सेंटेंस के साथ पहले कि जिसमें आपका प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एज एन एडजेक्टिव काम करता हो। कोई भी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस यू कैन ऐड, कुछ भी, कोई भी ऐड कर सकते हैं। ओके, एंड इन द सेकंड सेंटेंस ऐड अ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस एज एन एडवर्ब। कहने का मतलब यह है देयर आर फाइव सेंटेंसेस, इन पांचों सेंटेंसेस को आपको हर सेंटेंसेस को दो बार लिखना है। दोबारा मान लीजिए पहला सेंटेंस ये है, द बुक्स आर केप्ट हियर। अब द बुक्स आर केप्ट हियर के साथ आपको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऐड करना है अपने मर्जी से। अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस जो ऐड करेंगे, एक बार इस तरह यूज करना है कि वहां पे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो, दूसरे सेंटेंस में किस तरह काम कर रहा हो, एडवर्ब की तरह काम कर रहा हो। ओके, हो जाएगा? एक बार कोशिश करते हैं। द बुक्स आर केप्ट हियर, द बुक्स आर केप्ट हियर के साथ कोई प्रीपोजिशनल फ्रेजेस कुछ कवर करें। Sir, on the book are keeps here. बेटा क्या कर रहे हो, केप्ट को कीप्स कर दे रहे हो। आप बुक के बारे में थोड़ा सा बुक को ही थोड़ा सा एलेबरेट कर दो, ऐसा कोई वर्ड यूज कर दो जो बुक्स के बारे में डिटेल थोड़ा कुछ बुक्स को क्वालिफाई करे, तो आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, लेकिन प्रीपोजिशन वर्ड के साथ शुरू करके। कोशिश करिए महक, जल्दी से आप, महक, सिद्धात्री, प्रिया, कोई जो भी कर पाए। अरुण आप भी। द बुक्स, अब द बुक्स कौन से बुक्स, ऐसा बोल सकते हैं, हो जाएगा ना एडजेक्टिव, आर केप्ट हियर। इस तरह की किताब यहाँ पे रखा हुआ है। अब बुक के को इलैबोरेट कर दीजिए, अपने आप ही एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। कौन सी बुक? हाँ बताइए बेटा, महक कोशिश करिए। महक कुछ समझ में आ रहा है? चलिए मैं एक बार बताता हूं। द बुक्स विद द टॉम कवर, द बुक्स विद द मां गॉडेस लक्ष्मी कवर, कुछ भी कर सकते हो, कवर पे कुछ छपा हुआ। द बुक्स विथ द क्लोथ कवर या रैक्सीन कवर, ऐसी किताब जो रैक्सीन कवर में है, आर केप्ट हियर, वो रखा हुआ है। मैं लिख ही देता हूँ, लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। द बुक्स विद द कवर्स, अब ऐसे अगर लिख दिया तो क्या हुआ यहाँ पे? विथ आपका कहने के प्रीपोजिशन वर्ड है कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. अब द बुक्स विद द टॉम कवर, विथ द टॉम कवर, ये आपका क्या होगा? प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो गया। आर केप्ट हियर यानी सारे सेंटेंस को आपने यूज किया, बस विद द टॉम कवर से आपने यूज कर लिया। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस क्या हुआ? विद द टॉम कवर, आपने इसको यूज तो किया, लेकिन ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है या एडवर्ब की तरह? किसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को या वर्ब को? Sir, noun. तो दैट मींस इट इज वर्किंग एज एडजेक्टिव। अब आपको दूसरा प्रीपोजिशनल फ्रेजेस इसी सेंटेंस के लिए यूज करना है जहां पे वो एडवर्ब की तरह काम करता हो, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो। अब इसको बताइए। The books are kept here in the classroom, in the computer room, in the drawing room, in the kitchen. इन आपका हो गया प्रीपोजिशन वर्ड, और फिर लास्ट में जो आपका ऑब्जेक्ट जुड़ गया, हो जाएगा कि नहीं? आसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कर ले Yes, sir. द बुक्स आर केप्ट हियर। अब केप्ट हियर कहां? इन द किचन, इन द बेडरूम। अब इन द बेडरूम ये सब आप अलग से, आप ये करने के जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है ना कि कहां पे रखा है। दैट मींस इट विल बी वर्किंग एज एडवर्ब, और इस तरीके से प्रीपोजिशनल फ्रेजेस की तरह काम करेगा। कर ले जाएंगे? Yes, sir. Now come to the second. I found my football. Yes. I found my football. अब I found my football, अब इसमें से आपको एडजेक्टिव की तरह पहले करना है, फिर एडवर्ब।
आई फाउंड माई फुटबॉल, नाउन को मॉडिफाई करे, क्या हो सकता है? पहले या तो फाउंड को मॉडिफाई करे जो कि वर्ब की सहायता कर रहा हो, वर्ब की को मॉडिफाई कर रहा हो, या फुटबॉल के बारे में बता रहा हो। तो फुटबॉल के बारे में बता रहा हो, ऐसा कुछ बोलिए। आई फाउंड माई फुटबॉल, I found my football on the garden. ऑन द गार्डन नहीं, इनसाइड या इन द गार्डन, ठीक है बेटा। इन द गार्डन आपने बोला, बहुत अच्छा, लेकिन क्या ये एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, ये बताइए। आई फाउंड माई फुटबॉल इन द गार्डन आपने बोला, बट ये अब ये फाउंड को मॉडिफाई कर रहा है, फाउंड के बारे में बता रहा है, या फिर फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल को तो, फुटबॉल कैसा है ये तो नहीं बताया जा रहा है ना। No, sir. So तो दैट found मींस की कि एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, जो आपने बोला दैट इज करेक्ट, बट दैट इज अ वर्किंग, दैट इज अ एडवर्ब। जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आपने बताया वो आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। इसी तरह प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऐसा बताइए जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा हो। आई फाउंड माई फुटबॉल, क्या हो सकता है? फुटबॉल को मॉडिफाई कर रहा हूं, फुटबॉल के बारे में बता रहा हूं। विथ रेड कलर, विथ व्हाइट कलर, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। व्हाइट कलर वाला फुटबॉल या ग्रीन कलर या whatever you are in, you are having in mind. In the same way also you need to write the third and fourth and fifth. फिलहाल समय ज्यादा नहीं है तो इस वजह से मैं इसे तीनों को ही डिस्कस करके आज का सेशन एंड करूंगा। कुसुम वेंट टू द पार्टी, कुसुम वेंट टू द पार्टी को आप कैसे यूज कर सकते हैं? अब कुसुम ने पहना कैसा है, कपड़े कैसे पहना है, कुसुम कैसे दिख रही है, कुसुम को जो मॉडिफाई कर रहा हो, कुसुम के बारे में जो बता रहा हो, वही आपका प्रीपोजिशन वर्ड के साथ यूज कर लीजिए, बस वही आपका एडजेक्टिव की तरह हो जाएगा। अब वो वेंट, वो कैसे गई? बाई टैक्सी। तो बाई टैक्सी या जो भी है, तो अगर आप जो जाने को जो मॉडिफाई कर रहा हो उसके वेंट यानी जो क्रिया को जो मॉडिफाई कर रहा हो वही आपका क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब की तरह काम करेगा। अगर प्रीपोजिशन वर्ड से शुरू हो रहा है तो वो प्रीपोजिशनल एड मतलब फ्रेजेस हो जाएगा। तो एक बार कोशिश करिए थर्ड के लिए, कुसुम वेंट टू द पार्टी, कोशिश करिए। Sir, बताइए बेटा। Kusum went to the party by the car. बाय द कार, लेकिन ये क्या है? क्या है बाय द कार? ये आपका एडवर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा? बाय द कार Sir, adverb. एडवर्ब होगा। चलिए ठीक है, कुसुम वेंट टू द पार्टी, अब एडजेक्टिव की तरह तो बताना है, कुसुम को जो मॉडिफाई कर रहा हो या द पार्टी को जो मॉडिफाई कर रहा हो। एक बार कोशिश करिए। कुसुम वेंट टू द पार्टी ड्रेस्ड लाइक अ ब्यूटीफुल डॉल, लिख सकते हैं। लाइक ए ब्यूटीफुल डॉल आपका यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का काम करेगा ना। Yes, sir. अब ये लाइक ए ब्यूटीफुल, यहाँ पे लाइक का स्पेलिंग गलत है, प्लीज आप लोग सही कर लीजिएगा। लाइक ए ब्यूटीफुल डॉल ये आपका एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। कुसुम को मॉडिफाई कर रहा है ना, कुसुम के बारे में बता रहा है ना। Yes, sir. ठीक है, इंग्लिश में यू ऑल आल्सो कैन डू। नाउ कम टू द फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन, जल्दी से चौथा और पांचवा भी करते हैं। जारा चेज्ड जरीना, जारा चेज्ड जरीना, क्या हो सकता है? ये जरीना आपका प्लेस का नाम है एक तरीके से, नहीं जरीना क्या कह सकते, जारा एक तरीके से। चलिए ठीक है,
एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ऊंचाई वाली जगह का नाम है, ठीक है, जारा चेस्ट जरीना। अब क्या है, आउटसाइड द हाई बाउंड्री वॉल, इसको आप लिख सकते हैं जारा चेस्ट जरीना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ऊपर। ये आउटसाइड होगा बेटा, ओके, Yes. आउटसाइड द हाई बाउंड्री वॉल। तो आपने आउटसाइड द हाई बाउंड्री वॉल आपने जो यूज किया है, दैट इज वो क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, बिकॉज इट इज मॉडिफाइंग द जरीना, ओके। अब एडवर्ब की तरह अगर आप कोशिश करें तो क्या हो सकता है, जारा चेज्ड जरीना। अब चेंज करने के कैसे किया, कहां पे आपने कर दिया, कैसे किया है, बस यही सारी चीजें बता दीजिए, बहुत है। क्या हो सकता है, इन द प्लेग्राउंड लिख दिया मान लीजिए, ड्यूरिंग लंच ब्रेक। अब यहाँ पे ड्यूरिंग लंच ब्रेक, इन द प्लेग्राउंड, बोथ आर वर्किंग एज ए, इन द प्लेग्राउंड आपका एक तरीके से एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, जरीना के प्लेस के बारे में बता रहे हैं, बट ड्यूरिंग ब्रेक ये चेंज करने के समय के बारे में बता रहे हैं, दैट मींस इट इज वर्किंग एज ए एडवर्ब। क्लियर? Yes, sir. आई रिसीव्ड द लेटर, आई रिसीव्ड द लेटर भी जल्दी से आप कोशिश करिए। आई रिसीव्ड द लेटर इन अ ब्यूटीफुल इनवेलप कह दीजिए, आई रिसीव्ड द लेटर इन अ ब्यूटीफुल इनवेलप। अब जो लेटर था वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल इनवेलप में, यानी एक तरीके से नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है। इन ब्यूटीफुल येलो इनवेलप, कलर भी डाल दीजिए, रेड इनवेलप। और अगर एडवर्ब की तरह यूज करना हो तो आप क्या कह सकते हैं, आप लोग बिफोर द एग्जाम, आई रिसीव्ड एन एक्नॉलेजमेंट लेटर, आई रिसीव्ड एन एक्नॉलेजमेंट लेटर। इसको लेटर के बारे में ही बता दो ना, आई रिसीव बिफोर द एग्जाम। अब बिफोर द एग्जाम आपका कब रिसीव किया ये बताया जा रहा है ना, सुबह को, शाम को, तो ये रिसीव को मॉडिफाई कर रहा है। बिफोर द एग्जाम अगर आपने कर दिया, बिफोर द एग्जाम आई रिसीव्ड अ लेटर, इतना ही बहुत है। बिफोर एग्जाम आई रिसीव द लेटर, तो बिफोर एग्जाम आपने लगा दिया तो रिसीविंग का समय जो है रिसीव को कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर रहा है, लेटर को नहीं मॉडिफाई कर रहा है। तो बिफोर द एग्जाम आई रिसीव्ड अ लेटर, या आई रिसीव्ड एन एक्नॉलेजमेंट लेटर, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आई रिसीव्ड द लेटर बिफोर द एग्जाम, आई रिसीव्ड द लेटर, तो बिफोर द एग्जाम वुड बी अ प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। क्लियर? कर ले जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगा Yes, sir. बेटा। देयर इज अ लास्ट एक्टिविटी, डिस्क्राइब योर क्लासरूम यूजिंग एटलीस्ट 10 प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। फिलहाल राइट नाउ, नाउडेज यू ऑल आर नॉट इन योर क्लासरूम्स, बट हाँ यू कैन अज्यूम, आप अजम्पशन कर सकते हैं, आप अज्यूम कर सकते हैं अपने क्लासरूम का, एंड यू कैन डिस्क्राइब योर क्लासरूम यूजिंग एटलीस्ट 10 प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। दैट मींस कि यू शुड राइट एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस हैविंग 10 प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, ओके। आप लिख सकते हैं, बी पुट आवर आर्ट फाइल्स इन द कपबोर्ड, बी पुट आवर बुक्स इन द कपबोर्ड। अब इन द कपबोर्ड आपका एक तरीके से क्या होगा, वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस तो होगा। बी पुट आवर कॉपीज, या बी पुट आवर रजिस्टर, बी पुट आवर बुक्स, बी पुट आवर बैग्स इन द, जो भी हो, बी सिट इन द, बी सिट ऑन द बेंचेस, ऑन द बेंचेस भी आपका हो गया क्या, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, बहुत सारे सेंटेंसेस है। Yes, sir. You all can write within a book, यहीं पे नीचे ही आप लोग लिख सकते हैं, and in this way you all can complete the grammar station part. Is there any query, any questions? अगर कुछ भी रहता है, कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसको सॉल्व करूंगा। अभी आप लोग को अपने तरफ से कोशिश करना है, कर ले जाएंगे Yes, sir. बेटा। It's 8:55 already, so from 9 o'clock already we are having another class for the class 5. So that's all for today, okay. In the next session we would be reading the writing section. Writing section अभी नहीं हुआ है ना इसका, No, sir. राइटिंग सेक्शन नहीं हुआ, हो चुका है। हाउ टू राइट ए No, नोटिस, sir. तो हाउ टू No, राइट ए sir. नोटिस, आई वुड बी टेलिंग यू ऑल दैट कि हाउ टू राइट ए नोटिस, यू ऑल आर नीड टू रीड दिस वन। तो इसी को पढ़ के नहीं आना है, प्लस ऑल्सो देयर इज एन एक्टिविटी, कुछ एक्टिविटीज विद ये है, एक सेशन इसका और एक सेशन आपका राइटिंग सेक्शन का।
ये दो सेशन में रीडर्स राइट तो आपको स्वयं पढ़ के आना है बेटा। रीडर्स राइट में कोई एक्टिविटी नहीं है, रीडर्स राइट आपका पढ़ के आइएगा जब परसों आपकी क्लास होगी, not day after tomorrow, on Tuesday, whenever we would be having a next slide class on Tuesday, you all are supposed to come with this one, the arrow and the song। आप इसको पढ़ के आइएगा और along with this also you need to skills on the track। यहाँ पे कुछ आपको एक्टिविटी दिया गया है, इसको आप अभी पढ़ लीजिए क्या है, so that you can speak about this skill on Tuesday। समझ में आया? इसमें कुछ एक्टिविटी Yes, क्या sir. you all can do at your home। अभी स्कूल में नहीं है बट आप अपने घरों पे कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीजें हैं। ओके विशल अवे, स्किल्स ऑन ट्रैक एंड रीडर्स राइट, ये 3 सेक्शन आपको पढ़ने के लिए आपको आज का होमवर्क दिया जा रहा है along with the questions from the grammar station। okay Yes, sir. that's all for today। Yes. goodbye everyone। Goodbye. Sir, good.